Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this particular video, we are going to solve few questions related to circle and its basic properties. Okay friends, so let's start. Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this particular video, we are going to solve few questions related to circle and its basic properties. Okay friends, so let's start. So here is the first question. Okay, now the question is, in the adjoining figure, the distance of a point P from the center O of the circle is 20 centimeter. The radius of the circle is 5 centimeter. A line through P is a tangent to the circle at B. Find the length of PB. Means we have to find out the length of the tangent. Okay, so कैसे करेंगे friends? We know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ओके, इट इज़ द मतलब क्या है इसका कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है यहाँ पे ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि पी बी इज ए टेंजेंट एट बी एंड ओ बी. वट इज ओ बी? ओ बी इज द रेडियस. ओके, ओ बी इज द रेडियस थ्रू बी. So OB perpendicular PB. Now triangle OPB. Okay, triangle OPB, it is a right angle triangle. So in this particular triangle we are going to use Pythagoras theorem. Okay, तो Pythagoras theorem क्या होता है कि base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. So in this 90 के जो सामने है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि OP इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है PB. ओके, तो हम क्या करेंगे, PB को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो OB है उसका ट्रांसपोज करके राइट साइड में लेके जाएंगे. तो इस हिसाब से ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. और हमको क्योंकि सिर्फ PB फाइंड आउट करना है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. OP इज 20, OB इज 5, सो 20 स्क्वायर 400, 5 स्क्वायर 25, 400 माइनस 25 इट इज़ 375. ओके, अब 375 आ गया. अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर रूट, क्योंकि 375 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू चेक करेंगे. सो इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ ये 5 जो है इसके ही हमारे पास क्या बन रहे हैं? पेयर बन रहे हैं. ठीक है, तो 5 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा? 15. सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PB इज 5 रूट 15 सेंटीमीटर. Now next question is, a point P is at a distance of 29 centimeter from the center of a circle, okay, of radius 20 centimeter. Radius is 20 centimeter. Find the length of the tangent. So you can again see that this particular question is like the previous one. Okay, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी. ठीक है, तो इसको भी सिमिलर मैनर में हम सॉल्व करने वाले हैं. Again we will write, we know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, ये point of contact है B और इसके ऊपर जो टेंजेंट है यहाँ पे जो रेडियस होगा इसके परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो अगेन OB परपेंडिकुलर PB. तो हम यहाँ पे भी क्या अप्लाई करने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम. सो ट्रायंगल OPB. ओके, OPB और OBP, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल in which OB, suppose it is base, PB is perpendicular, so obviously OP this one, OP is hypotenuse. Again we have to find out PB. So what we will do, we will transpose OB square to the other side. Okay, and put the values. 29 square is 841, 20 square is 400. Okay, so 841 minus 400, it is 441, and square root of 441 is 21 centimeter. Okay, so the length of the tangent PB is 21 centimeter. Is that clear, friend? Now next question is again related to the previous one, but it is slightly different from previous one, slightly different. Okay, so in the adjoining figures, C is the center of the circle. PA and PB means PA and PB, these two are the tangents from an external point P, okay, to the circle. Now the radius of the circle is 5 centimeter.
द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the center is 13 centimeter, means PC is 13. Find the length of the tangent PA and PB. Okay, again we will start this particular question also in the similar manner as we have done the previous ones. Okay, so we know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, again वैसा ही start करेंगे. उसके बाद क्या है कि in the above figure means this particular figure, this particular AP is the tangent at A and AC is the radius through A, and PB also it is a tangent. Okay, now AC perpendicular PB, AC perpendicular PA means AP. Okay, so triangle ACP is a right angle triangle. Again we are going to use Pythagoras theorem. So AC square plus AP square is equal to PC square. So here we have to find out the AP. Okay, मीन्स आइदर हम इसको बेस मान सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर जो है PC दैट इज द हाइपोटेन्यूज. सो AP इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट. ओके, सो 169 माइनस 25 144 square root of 144 it is 12 centimeter. Okay, so now there is one important point, okay, that we have studied in the circles properties. The length of the tangents drawn from an external point of a circle are equal. मतलब क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं. इस हिसाब से क्या है कि PA इज इक्वल टू PB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज़ मैंने जब सर्कल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं, आप चाहें तो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर्कल का जो प्रॉपर्टीज़ का वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं. तो उसमें मैंने बताया था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. इन ईच ऑफ दीज फिगर्स मीन्स अब इसके बाद हम एक सीरीज ऑफ फिगर्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर्स ऑफ X एंड Y. मतलब अब इसमें तो सिर्फ इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखेंगे सिर्फ X है, आगे जो डायग्राम्स आएंगे उनमें X एंड Y या Y ऐसा कुछ रहने वाला है. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि हमने सेमी सर्कल भी स्टडी किया था. तो ये जो है वो मतलब सर्कल के हाफ पोर्शन में एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हम लोग सेमी सर्कल में मतलब बोलते हैं सेमी सर्कल. ठीक है, सो वी नो दैट कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, यानी कि सेमी सर्कल में जो एक एंगल होता है वो राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, मीन्स एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे हम यही सेम जो है वो यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो एंगल ABD प्लस एंगल BAD, ओके, एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब ABD 90 है, बाकी दोनों XX हैं, तो इस हिसाब से x प्लस एक्स 2x और 90 को ट्रांसपोज करके अदर साइड लेके जाएंगे. सो 180 माइनस 90 x इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री. ओके, तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री. तो हमको इसमें x ही फाइंड आउट करना था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो x है, इस जगह पे x है और यहाँ पे y है. ठीक है, हमको x और y फाइंड आउट करना है. तो हम x और y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम लोग क्या जो सेमी सर्कल वाली जो प्रॉपर्टी है वही यूज़ करेंगे. ठीक है, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी. अभी हमें हमारे यहाँ पे दो देखे, ऊपर भी एक सेमी सर्कल है, नीचे भी एक सेमी सर्कल है, तो दोनों में हम क्या करेंगे सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो एंगल ABD मीन्स दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 और ये वाला भी एंगल 90 है. ठीक, तो ऊपर भी हम लोग सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी और नीचे भी सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इस हिसाब से द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो हम इसको क्या करेंगे कि एक साथ दोनों को सॉल्व करने वाले, दोनों ट्रायंगल एक साथ ले लेंगे और दोनों को एक साथ. सो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल AED. सो इसमें क्या है कि अगर हम जो ऊपर वाला ट्रायंगल देखें तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एक x है और एक 38 डिग्री है और दूसरा क्या है 90 डिग्री है. सो 90 प्लस x प्लस 38 इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 और 90 प्लस 1 जो 38 है दैट इज़ 128. तो ये कितना x आ गया 52 डिग्री आ गया. ऐसे ही इसमें यूज़ करेंगे तो एंगल AED प्लस एंगल EAD प्लस एंगल ADE, ये बताया था फ्रेंड्स कैसे हम इसको चेक करते हैं. जो सेंटर में जो हमने लेटर लिखा है एंगल वहाँ पे बना हुआ है. ठीक, अगेन पुट द वैल्यूज़
and you will get the answer of y. So 180 minus 142, answer is 38 degree. नाउ फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा ये इसमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इसमें हमारे पास क्या एरोज दी गई हैं. ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये जो एरोज हैं, ये जो एरोज क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि ये दोनों यानी कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट जो आर एस है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अब पी आर जो है एक्चुअली में ये डायमीटर है, बट पी आर इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन इज कटिंग, दैट पर्टिकुलर लाइन विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल अगर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डेंट एंगल, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब वैलिड हो जाती हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि अगर हम देखें तो जो ये 60 डिग्री है ये इस लाइन के साथ बना है, और ये एक्स जो है इस लाइन के साथ. इसका मतलब क्या है कि एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल प्लस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, मतलब ये वाला एंगल, मतलब एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. अब हमारे पास क्या है, हमारा जो एक्स है वो जो है 60 डिग्री आ गया. अब हम जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो एंगल्स, जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, वो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके थ्रू वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे. सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. 90 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो वाई इक्वल टू 180 माइनस 150. तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो इस हिसाब से एक्स 60 आ गया और वाई कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, अब इसमें भी देखिए दो ठो लाइन यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, ये जो आप देखेंगे ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों लाइन्स यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो पैरेलल है. अब देखिए ये पैरेलल है और इस ये जो सी आर है, सी आर इट इज़ एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, मीन्स y प्लस 40 इक्वल टू 180 एंड y इक्वल टू 140 डिग्री. ठीक है, y हमारा 140 आ गया. अब हम क्या करेंगे? अगेन ये जो सेमी सर्कल वाला जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करेंगे कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ को जब हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 180 माइनस 130, आंसर इज 50 डिग्री. यानी कि x आ गया हमारा 50 और y जो है वो 140 डिग्री आ गया. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन दिस फिगर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमारा ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम जानते हैं. ठीक है, कि यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा. ये हमको x फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमको पहले से 30 डिग्री गिवन है. ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो एंगल सी एस आर इज 90. तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा इसको आगे पीछे लिख दिया है. जो एंगल सी एस आर है वो 90 है. ओके, एंगल सी आर एस ये 30 है और ये जो एंगल आर सी एस है वो x डिग्री है. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 120 और 90 प्लस 30 करेंगे तो ये 120 मतलब 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री. तो यही एंगल जो है एस सी क्यू भी है, एस सी क्यू. ओके, अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको एंगल y निकालना है. अब y कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों है रेडियस. एक ट्रायंगल में जो है वो ये दोनों के दोनों वैसे तो रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होता है. मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल सी एस क्यू है यानी कि ये और ये जो सी एस क्यू ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. ठीक है, मतलब हम यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं कि इक्वल साइड्स द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक, मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू
एंगल सी एस क्यू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब यही वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इन ट्रायंगल सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू प्लस सी क्यू एस प्लस एस सी क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्योंकि देखिए एंगल जो सी एस क्यू है और जो सी क्यू एस है दोनों इक्वल है, बट हमको क्या चाहिए, हमको एंगल सी एस क्यू चाहिए। तो इसलिए हम लोग एंगल सी एस क्यू को रिपीट करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स लिखेंगे। मीन्स 2 एंगल सी एस क्यू इक्वल टू 180 माइनस 60 एंगल सी एस क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये ट्रायंगल है हमारे पास, एंगल कौन सा ट्रायंगल, तो ये पी क्यू और ये एस वाला, इसके अंदर हम लोग एंगल सम मतलब जो है सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी लगा के अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल सी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और एंगल वाई क्या आ जाएगा 180 माइनस 150। तो एंगल जो वाई है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं विद प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।